Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. I hope you have enjoyed all the festivals. Now it's time to back to studies. Today's topic is rulers and buildings. This is the topic of history for class 7th. This is very interesting chapter. ध्यान से सुनेंगे, बहुत मज़ा आएगा. In this chapter we are going to study about the rulers and the buildings which are constructed by these rulers and the technique of the construction of these buildings. In this chapter we are going to study about the architectural skills. किन skill से architectural style से ये buildings बनाई जाती थी. Because we are studying about the medieval period, so in this chapter we are going to study between the 8th to 18th century of rulers and the buildings constructed by these rulers. समझ में आया बच्चे? तो first I'll take the example of Qutub Minar. We have studied about the Qutub Minar in the Delhi Sultans. Qutub Minar, this is the rough diagram. एक छोटा सा diagram बनाया है मैंने Qutub Minar का. And the Qutub Minar was constructed by Qutubuddin Aibak, founder of Delhi Sultan. And up to first floor the construction work was done by Qutubuddin Aibak and rest by the Iltutmish, जो उसका सन इन लॉ था उसने बनाया था. बट बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ टाइम द बिल्डिंग द कुतुब मीनार वॉज डैमेज्ड बाय द लाइटनिंग एंड द अर्थक्वेक. बट टाइम टू टाइम इट इज़ रिपेयर्ड बाय द दिल्ली रूलर्स. दिल्ली रूलर्स इसको रिपेयर करते रहे. दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर एंड सी, इसको आप ध्यान से देखेंगे. दीज आर द आर्चेस which is constructed on this Qutub Minar and surface of Qutub Minar is कैसी इसकी surface है, मतलब curved and angular. curved है और angular है. तो it's very difficult to make these type of arches and write down on this surface. Only the skilled person could do this work. तो अब ये सोचिए उस समय कितने skilled person थे, उन्होंने curved और एंगुलर सरफेस के ऊपर दे कंस्ट्रक्टेड दीज आर्चेस और यहाँ पे दे हैव रिटन द इंस्क्रिप्शन इन अरेबिक. तो हम यही पढ़ेंगे. तो ये टेक्निक्स जो थी उस समय इतनी पॉपुलर थी, तो किस तरह उन्होंने ये सब चीज़ें और इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए एंड पैलेसेस बनाए, टॉम्स बनाए, तो कौन कौन सी टेक्निक्स वो यूज़ करते थे. क्लियर? And kings and their officers at that time means the medieval time, they constructed two types of monument. Number one, private monuments you can say. Second is public. Private में we can say forts, palaces, tombs, gardens. This is these monuments, the places used for only the royal people or royal family. And the second, for the public, they constructed the temples, mosques, tanks, wells and bazaars. अब हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो है पब्लिक जो मॉन्यूमेंट्स आप कह लीजिए, मॉस्क हो गए, टेम्पल्स हो गए, बाजार्स हो गए, ये सब क्यों कंस्ट्रक्ट किए जाता था? बिकॉज दे वर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट को आप इंग्लिश मैथ्स मत समझना. सब्जेक्ट मीन्स उनकी जो कॉमन पीपल जो प्रजा होती थी उसको सब्जेक्ट यहाँ पे बताया गया है. तो दे वर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ देयर सब्जेक्ट. और दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है, दे वांटेड टू विन द ट्रस्ट, सपोर्ट एंड लव from their subject. That's why they constructed the public monuments also, temples, mosques, tanks, wells and bazaars. And the construction work was also done by the traders and merchants also. Traders or merchant भी apart from kings and their officers, they constructed the, क्या चीज़ कंस्ट्रक्ट करते थे? temples, wells, mosques and domestic architectures means the हवेलीज. बड़े बड़े mansions बनाते थे जिसमें कि ये merchants लोग रहा करते थे. ठीक है, ये हवेली हमें आज भी देखने को मिल जाएंगी, पैलेसेस, टॉम्स हमें सब देखने को मिलते हैं. बट उनको देखने के बाद हमको ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इतने अच्छे मॉन्यूमेंट्स कैसे बिल्ड किए गए? बिकॉज एट दैट टाइम
दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज, कोई रिसोर्सेज नहीं होते थे, क्रेन नहीं होती थी, उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े स्प्लेंडिड मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनाए हैं, टेम्पल्स बनाए हैं इतने ऊंचे ऊंचे जिनका विमाना बहुत ऊंचा होता था। तो ये किस तरह पॉसिबल हुआ है, किस तरह वो ये आर्चेस बनाया करते थे। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन। क्लियर? मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। Superstructure. So what is superstructure? Superstructure means the part of the structure which is above the ground. जैसे suppose this is the ground और इसके ऊपर जो भी construction किया जाएगा, this is known as superstructure. Means the part of the building which is above the ground is known as superstructure. तो सबसे पहले उन्होंने superstructure कैसे किया? They make vertical column दो और इसके ऊपर एक horizontal beam रख दी, ये हो गया सुपर स्ट्रक्चर। बट इफ दे वांट टू कंस्ट्रक्ट द विंडो एंड डोर्स इन इट, अब यहाँ पे विंडो और डोर्स कैसे बनाए जाएंगे? इट नीड्स अ स्किलफुल कंस्ट्रक्शन, उसके लिए स्किलफुल कंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत थी। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? आर्किटेक्चरल स्किल। तो दो मैथड्स उन्होंने यूज़ किए, ट्रेबेट और कॉर्बेल्ट मेथड एंड आर्क्वेट। ट्रेबेट और कॉर्बेल्ट मेथड वर यूज्ड between the 8th to 13th century and arcuate method is used, yeah, we can see this type of method from 12th century. अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, what is trabate method? In this method they put the horizontal beams on these two vertical columns. These are the two vertical columns. ये दो vertical columns हैं, इनके ऊपर horizontal beam. Horizontal beam means इस तरह, समझ में आया आपको? इस तरह horizontal beams को place करते करते they made the arch. उन्होंने एक arch बनाया। तो this style was known as ट्रेबेट और कॉर्बेल्ट स्टाइल, इसको कॉर्बेल्ट स्टाइल। और इसमें जो कुतुल जो आपके कहाँ पर, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक मस्जिद है कुतुल इस्लाम, वो उसमें इसी टाइप की टेक्निक यूज़ की गई है। ठीक है। एंड दूसरा मेथड है आर्क्यूएट मेथड, जिसको हम देखते हैं फ्रॉम 12th सेंचुरी। इसमें थोड़ा सा चेंज उन्होंने किया, चेंज क्यों किया वो भी आपको रीज़न बताऊंगी। इसके अंदर दे यूज द वर्टिकल बीम्स। वर्टिकल बीम्स में क्या आ जाता है, अब जो बीम्स हम पहले ऐसे प्लेस कर रहे थे, अब हम उनको ऐसे प्लेस करेंगे वर्टिकल। क्लियर? एंड इसके साथ साथ उन्होंने दे यूज द लाइमस्टोन, सीमेंट एंड स्टोन चिप्स। इसके साथ साथ इन बीम्स को चिपकाने के लिए लाइमस्टोन, सीमेंट एंड स्टोन चिप्स क्यों यूज़ करना शुरू किया? टू गिव द स्ट्रेंथ टू दिस बीम्स, इनको स्ट्रेंथ देने के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया। अब ये क्यों स्टाइल पे यहाँ से क्यों जंप किए? बिकॉज दिस स्टाइल, ये जो स्टाइल थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बिकॉज आप देखिए यहाँ पे जो बीम्स हैं ये हवा में है, और जब इनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे आ सकते हैं। मीन्स स्ट्रॉन्गनेस से स्ट्रेंथ नहीं थी इस वाली टेक्निक में। सो दे यूज द आर्क्वेट स्टाइल, जिसमें दे यूज द वर्टिकल बीम्स यूज़ की, और उस बीम्स को या उन ईंटों को हम कह सकते हैं चिपकाने के लिए, आपस में ज्वाइन करने के लिए दे यूज द लाइमस्टोन, सीमेंट एंड स्टोन चिप्स, जिसकी वजह से ये जो आर्च बनता है ये स्ट्रॉन्ग बनता है। ये स्ट्रॉन्ग आर्च होता है जो टूट नहीं सकता। और ये जो है आर्च, जिसको हम ट्रेबेट स्टाइल में और कॉर्बेल्ट स्टाइल में बनाते थे, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है। तो बाद के 13-14 सेंचुरी के बाद जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें ये आर्क्वेट स्टाइल यूज़ की गई कंस्ट्रक्शंस के लिए, और ये वाली स्टाइल को हटा दिया गया क्योंकि ये इतनी यूज़फुल और स्ट्रॉन्ग
नहीं थी। क्लियर? ये दो स्टाइल आपको समझ में आया बेटा? ये दोनों स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे फिर बताएंगे, ठीक है? तो आज इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। रूलर्स जो थे वो बिल्डिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट करते थे, कौन सी स्किल यूज़ किया करते थे, बिकॉज उस समय रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि वो इतनी अच्छी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकें। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कुतुब मीनार का, ठीक है? और कंस्ट्रक्शन के लिए दो स्किल या दो मेथड्स यूज़ किया करते थे, ट्रेबिट मेथड और आर्कवेट मेथड। क्लियर? ये दोनों कौन कौन सी स्टाइल है ये आपको समझ में आ गई होगी। और बेटा ये आपको समझ में आया है चैप्टर, तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।